Now let's start practice set 4.1. There are total 8 questions. 8 questions are there. From 1 to 5 questions, we will take one example. If possible, we will take different also. And basic idea I will give you. You can solve the remaining examples. Okay. So let's start practice set 4.1. Question 1. Question 1 का first one. Find the following pairs of numbers. Find the reduced form of ratio of first number to the second number. One first example we will take 72 and 60. 72, 60. These two are the numbers. Find the pair of find the ratio first number to second number. ये देखना जरूरी है. कभी कभी क्वेश्चन में फाइंड रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू फर्स्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं. सो रीड केयरफुली. फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर ही है. ओके. देयरफॉर फर्स्ट नंबर 72. Solution start. 72 is to 60. First number to second number ratio in the form of symbol. So to simplify the ratio, find the from the following number, find the simplest ratio. So take the division. So when we have to solve, remove this symbol by taking division. 72 is to 60. It means 72 upon 60. Okay. Now to simplify the ratio, you should know the tables. आपका tables perfect होना चाहिए. Tables नहीं आता तो multiplication में factors भी आप ले सकते हो. So ratio can be simplified by dividing the same number or by taking the factors. आपको जो easy लगता वो कर सकते हैं. So I know कि both numbers they lie in the table of 12. 12 में है इसलिए मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ. 12 5 60. 12 6 72 like this. ये है या फिर ये अभी 6/5 के आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा. Therefore 6 is to 5 is the simplest form. Or also you can solve like this. 72 upon 60. 72 means 12 6 the 72. या फिर ये 10 6 the 60 like this. 6 6 cancel. फिर 12 और 10 को 2 से करो. 2 5 2 6. लास्ट में 6/5 ही आंसर आ गया. So in this way you can either take factors or you can divide by the same number. In any way we can get the same answer. 6/5 6/5. So this is called as simplest form of the ratio. In this way you can solve the remaining sums. Now question 2 first there are 6 examples. First we will see. Find the reduced form of the ratio of the first quantity to second quantity. उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है 700 rupees and 308 rupees. We'll take first example. The quantities are given in rupees. In this there are no units. Units नहीं है तो डायरेक्टली you can solve. But unit दिया है तो यूनिट सेम करना पड़ेगा दोनों का. पर ये एग्जाम्पल में सेम दिया है 700 rupees and 308 rupees. Question 2 का फर्स्ट. So as we know कि क्वांटिटी का यूनिट सेम है तो you can directly simplify. So take 700. When you are solving the ratio, unit should be removed. 700 is to 308. So first quantity to second quantity. Same method है यहाँ पे भी. So which is equal to 700 divide 308. आपको अगर पता नहीं है ये इतने बड़े नंबर्स कौन से टेबल में है, यू कैन गो ऑन डिवाइडिंग. दोनों इवन नंबर है, दोनों को सेम नंबर डिवाइड अगर करते हो तो सेम नंबर से करना पड़ेगा. वहाँ 5 से यहाँ 6 से नहीं चलेगा. इफ यू आर डिवाइडिंग डिवाइड बाय सेम नंबर. और उसके लिए आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए. 0 और 8 है लास्ट में तो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. 2 से कर सकते दोनों को. ओके. क्या आएगा? 2 3 6 1 0. 2 5 10 0. 2 1 2. 2 5 10. 2 4 8. सपोज टेबल पता नहीं है तो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. बट कीप इन माइंड द लास्ट नंबर शुड बी इवन नंबर और 0. 2 से करना है. अगर यहाँ पे 9 होता तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना. ये बहुत सिंपल चीज है. तो 2 1 2 डिविजन तो आपका आता होगा. 2 1 2 15. 2 7 14. 1 10. 2 5 10. 2 7 14. 2 7 14. 175 upon 77. सो अगेन ये डिविजिबल किससे है?
7 से है क्या, 7 1 7 7 या 7 से दोनों डिविजिबल है। 7 2 14, 7 5 35, 7 1 7 25. Therefore 25 is to 11 is the simplest form of the ratio. देखो कितना स्टेप में किया, 1 2 3 है ना। ऐसा कभी कभी 3 4 स्टेप में होता है सिंप्लीफाई, तो कभी कभी 1 स्टेप में भी होता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सिंप्लीफिकेशन। नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का वन एग्जांपल आई विल टेक। अगर ओके क्वेश्चन 2 का आगे वन मोर विल टेक जिसमें यूनिट सेम नहीं है, ऐसा लेते हैं। सेकेंड वन इज 14 रुपीज और 12 रुपीज 40 पैसे। 12 रुपीज 40 पैसे यूनिट डिफरेंट होगा तो क्या करना है, ऐसा ऐसा यूनिट डिफरेंट होगा तो यूनिट सेम करना है। बट सेम मतलब कैसे, किस में करोगे सेम, तो इसमें जो लोवेस्ट है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म जो लोवेस्ट में है उसमें करने का। जैसे कि रुपीज और पैसे, इसमें कौन सा लोवेस्ट है, कौन सा छोटा है, पैसे छोटा है, तो पैसे में करने का। तो फॉर कन्वर्शन यू शुड नो द फॉर्मूला कि क्या है। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसको एक मार्क पक्का रहेगा। नाउ कन्वर्ट ऑल रुपीज इनटू पैसे, तो देयरफॉर 14 रुपीज इज इक्वल टू 14। 1 रुपीज का 100 तो 14 का 14 इंटू 100 पैसे, इट मीन्स 1400 पैसे। और यहाँ पे 12 रुपीज का कितना आएगा, 1200 पैसे। इसमें फिर 40 पैसे ऐड करो, है ना। 12 रुपीज इसमें ही लिख सकते हैं, 12 रुपीज 40 पैसे इज इक्वल टू 1200 पैसे प्लस 40 पैसे, टुगेदर 1240 पैसे। समझा? सो 14 रुपीज इट मीन्स 1400 पैसे एंड 12 रुपीज 40 पैसे इट मीन्स 1240 पैसे। समझ में कैसे किया? ओके, नाउ टेक द नंबर्स फॉर रेशियो। 14 रुपीज इट मीन्स 1400 पैसे, और दूसरा जो है 1240 पैसे। So while taking the ratio, remove the unit. Therefore, ratio of the both numbers directly. So therefore, solution में आएगा 1400 upon 1240. So पैसे में same unit convert करने के बाद ही you can take the ratios. Now last zero can be direct cancelled. आप डायरेक्टली डिवीजन कर सकते हो। देखो यहाँ पे 4 0 है, 2 4 है। You should know the test of divisibility. क्या है इसमें, कौन सा टेस्ट है? सो एज बोथ नंबर्स आर इवन नंबर्स, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, या फिर 4 के मल्टीपल्स है, ये 4 से और 4 से दोनों को डिवाइड होता है। इफ लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ए बच्चा क्या 140 अपॉन 124, इन दोनों को हम डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 4 3 12, 2 0 4 5 20, 4 3 12, 4 1 4। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें प्राइम नंबर एक है, प्राइम नंबर एक भी नंबर सिंपल मिला, प्राइम नंबर मिला, तो यूर आंसर इज ओवर। देयरफॉर 35 is to 31 is your answer। देखो अभी यूनिट डिफरेंट भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो द कन्वर्शन फॉर्मूला, है ना। बाद में ईयर्स है, मंथ्स है। ईयर मंथ में क्या करोगे आप, ईयर का मंथ में करना है, जैसे कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ऐसे करना है। मिनट सेकंड का है, जिसमें मिनट्स है उसके सेकंड्स करो, और बाकी सेकंड्स जो दोनों नंबर मिला के, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया रुपए पैसे का 1 पैसे किया, वैसे मिनट सेकंड के मिनट करके एक क्वांटिटी बनाना है, और आगे का एक और एक 2 क्वांटिटी बनने के बाद ही वी कैन टेक द रेशियोज। क्वेश्चन 3 का लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस in the reduced form. 75 is to 100. These are the percentage. I told you कि if second quantity is 100, then it is the percentage. Convert this into simplest form or reduced form. Reduced simplest मतलब ऐसा जिसमें आगे divisible नहीं होगा। Therefore 75 upon 100. You know बेटा कि both numbers are the divisible by 25. जितना टेबल्स अच्छे से लर्न है उतना जल्दी सिंप्लीफिकेशन होगा। Therefore 25 से डिवाइड करो is equal to 25 3 is 25 4 is 100 फिनिश। तो आंसर क्या आया, 3 is to 4।
ऐसे, क्लियर। से अभी एक जगह पे उन्होंने दिया है सिंबल। नेक्स्ट वन की 6.25%, ये नंबर को सिंपली करना है। थर्ड एग्जांपल ये, हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल। सिंपल है यार, यहाँ पे सिंबल निकालो और टेक 100 इज इक्वल टू 6.25 अपॉन 100। सिंबल निकालो, 100 लीजिए। नाउ सिंप्लीफाई, फर्स्ट ट्राई टू रिमूव द डेसिमल। 625 अपॉन 100 मैंने ऐसे लिया। पहले यहाँ पे है डेसिमल के आगे 2 नंबर्स है, सो इफ वी टेक 2 नंबर्स एट द डिनोमिनेटर, 2 zeros, डेसिमल विल बी रिमूव्ड, है ना। डेसिमल के आगे जितने नंबर्स है, न्यूमरेटर पे 2 नंबर्स है तो 2 0 नीचे डिनोमिनेटर पे लेते हैं, रिमूव, इट कैन बी रिमूव्ड। या फिर मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय 100 एनीवे। वही कभी बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 से होता है, 25 से होता है। यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे भी 25 से डाइट करेंगे तो इजी हो जाएगा ना। Therefore 25 is 625। 25 का स्क्वायर है ना। यू आर 9th स्टैंडर्ड, आपको 9th में आने के पहले 25 या 30 तक के टेबल्स, 1 to 30 के स्क्वायर्स, 1 to 10 के क्यूब्स, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए, तो आपको इजी आएगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। 25 625। नाउ 25 4 100, 4 100 गए, आपके आगे 2 0, ओके। और 25 1 25 1 25, 15 remaining 0, 25 6 150। Therefore 1 upon 16 is the simplest form of, अगर और सिंपल नहीं होगा तो 1:16 is the reduced form of the given example. Clear? So students, I am not giving time to write down. You can write down on your own, otherwise you can review करो, बार बार देख के समझ लो, but on your own you have to write down. I am not giving the timing for writing, or with me you can write and understand. Okay. Now the next question we'll see, there is some word problems. We can use such ratios to solve examples of word problems. Is it clear? One example we'll take here. 3 persons can build a small house. एक मिनट, अपने word examples एक साथ लेंगे। First we'll take question 5. Question 5 is convert the following ratio into percentage. Percentage में convert करना है। One example take 15:25. Convert this example into percentage. It means what? It means obtain this term as a 100. Second term 100 मिल गई कि हो गया। Therefore take 15/25। अगर नंबर मल्टीपल है तो इजी हो जाएगा। नाउ डायरेक्टली 25 4 100, ये अब पता है हमें। ऐसे भी 25 into 4 100, यहाँ पे किया तो यहाँ पे 4 से करो। सेकेंड नंबर 100 मिलने के लिए आइदर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। मल्टीप्लाई करने से आता है तो क्या मल्टीप्लाई, 25 4 100 आता है ना, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4, 15 4 60 अब 25 4 100। देखो 25 का 100 मिल गया, इट मीन्स कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज 60%। फिनिश। सो दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज फॉर्म। ये ऐसे लिखो या ऐसे कैसे भी चलेगा, बट इतना आसान होता नहीं हमेशा। जैसे कि अभी 50 का भी 100 हो सकता है, लेकिन 7/10 भी इजी है, ठीक है। 7/10। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी कैसे होगा, 10 है, इसमें इंटू 10 करो, इंटू 10 करो, तो 7 10 70 और 10 10 100 इक्वल टू 70% हो गया। बट ये जो है ना यहाँ पे लास्ट वन इज डिफरेंट एंड फोर्थ वन इज डिफरेंट। आई विल टेल यू फोर्थ वन इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 546/600, ये कैसे करोगे, एज आई टोल्ड आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ बड़ा नंबर है तो कैन डिवाइड। तो 546 डिवाइड 600 को क्या करोगे तो यू विल गेट हियर 100। 600 को 6 से करोगे ना, 6 1 तो 6 1 मतलब 100 रहेगा। यहाँ होगा तो यहाँ भी 6 से होना ही चाहिए, हो सकता है, देखते हैं। 6 9 54, 6 1 6 अपॉन 6 1 एंड 0 0 100 आ गया। 100 आएगा मतलब इट इज 91%। ऐसा लिखो या फिर ऐसे यहाँ पे छोड़ दो, चलेगा। तो ये सब ऐसे रहा, तीनों अलग टाइप के हैं।
एंड यहाँ पे जो डिफिकल्ट है वो है लास्ट वाला 7/16। इन एवरी केस मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से 100 मिला हमें, बट यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल ऐसा है कि जहां से ना मल्टीप्लाई करने से आता है ना डिवाइड करने से 100 मिलता है। तो व्हाट टू डू, 5th एग्जाम्पल 7/16। इसको कैसे करना, देखो इसको इनटू करने से भी 100 नहीं आता और डिवाइड करने से भी 100 नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 100 तो मिलना ही हमें एनीवे, तो इसलिए यहाँ पे दोनों को भी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बिकॉज वी वांट 100, है ना। तो करने के बाद क्या मिलेगा, 700 इंटू 7 इज 700 अपॉन 16 इंटू 100, दोनों को मत करो, यहाँ पे 16 को ही करो और ये 100 ऐसे रखो। ओके, बिकॉज वी वांट दिस ना, वी वांट दिस, इसी को ही शिफ्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिवीजन लीजिए। 700/16 को ही डिवाइड करो, क्या आएगा 700/16, 16 4s 64, 16 4s 64, 60 वही आ रहा है 44.4 रिकरिंग वी आर गेटिंग, ये दोनों का डिवीजन एंड अपॉन 100, 44 आ रहा है, तो देयर इट कैन बी रिटन एज 44%। एक 4 छोड़ भी सकते हैं बिकॉज लेस देन 5 है। क्लियर, सो दिस इज द हाफ पार्ट हो गया है, रिमेनिंग पार्ट वी कैन टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक यू कैन share and subscribe.